हाँ जी। हेलो, यस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? नाउ माय वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल? आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? इफ यस, क्विकली हैंड रेज करेंगे आप लोग। यस, वेरी गुड। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Okay, so now we'll start the chapter. As you all know that yesterday in our previous class हम लोगों ने जो chapter start किया हुआ था वो है the sound of music, right? Sound of music का first part जो था that we have completed, that was Evelyn Glenn listens to the music without hearing it. है ना? Evelyn Glenn listens to the sounds without hearing it. That is, she was deaf. वो नहीं सुन पाती थी, but still from her different body parts she was able to hear what? She was able to hear the music. She felt the music, she felt the vibrations, and she continued her profession as a musician, and she got to learn about so many various different kinds of instruments. And along with her skill, along with her strong determination, what she did, she became a sensation in the whole world, and she never looked back. ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी. एंड द सेकंड स्टोरी हमारी किसकी थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की. राइट, वी हैव आल्सो गॉट टू नो अबाउट इट्स फ्यू मेन जो हमारे पॉइंट्स थे वो. इट्स बेसिकली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब कौन थे? द शहनाई वादक, अ ग्रेट शहनाई वादक. राइट, अब शहनाई आपको मालूम है क्या होता है? इट्स अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो हम अगर देखते हैं तो हमारे इंडिया में भी उसको कब प्ले किया जाता है उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को? इट्स प्लेड व्हेन ऑन एन ऑस्पिशियस ओकेजन, स्पेशली द वेडिंग्स. जब शादियां होती है ना, दैट टाइम इट्स मेनली उस वक्त उसको हम लोग उसको प्ले करते हैं. ठीक है. एंड हाउ द शहनाई वर्ड ओरिजिनेटेड, how basically the Shehnai originated, little descriptions about Ustad Bismillah Khan Sahab. तो ये सारी जो चीजें थी that we understood as the brief, as the basics of this second part, that is the Shehnai of Bismillah Khan. Okay, now so what we understood is Emperor Aurangzeb जो थे उन्होंने बैन कर दिया था the playing of pungi in the royal residence. ठीक है, in the royal residence he banned the playing of pungi. Why? Because it has a very unpleasant sound. Because of the bad tonal quality of pungi, उन्होंने pungi को बैन कर दिया. और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, it was first played by a nai, that is a barber, in the Shah palace, in the Shahi chambers. That is why Shahi plus nai becomes together what? It becomes Shehnai. Now, Bismillah Khan Sahab जो थे often sang the Bhojpuri Chaita in the Bihari Ji temple. And उसके बदले उनको क्या मिला? एक big लड्डू उनको as a reward मिलता था हमेशा. Then he started taking it more seriously and he started practicing it with his uncle whose name was Ali Baks Khan. उनके साथ वो उसको practice करते थे. And as you all know, practice क्या करती है? It makes a man perfect. इस प्रैक्टिस ने उनको इतना परफेक्ट कर दिया that he practiced this instrument and got perfection. And firstly he was selected in the All India Radio Lucknow, okay, to play the Shehnai, and he performed many programs in India as well as abroad, like from America to Afghanistan, we can say abroad nations में उन्होंने अपनी इस creativity को, अपने इस talent को उन्होंने expose किया. And he has also, along with these achievements, उनके कुछ और achievements भी हैं. उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे achievements किए, and one among them was that he influenced a big film director whose name was Vijay Bhatt. उन्होंने इतने बड़े film director को भी influence किया कि वो इतने ज्यादा influenced हो गए कि उन्होंने क्या किया? अपने instrument का name किसके नाम के पीछे रख दिया? गूंज उठी शहनाई. And he was awarded the several national awards जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण and पद्म विभूषण. And he was finally awarded the Bharat Ratna, which is the highest civilian award of India in 2001. उनके अंदर बहुत great love था for the country.
and specially for Banaras and Dumrao, जहां से वो belong करते थे. And along with this, he was a perfect example of rich culture. वो rich culture के एक perfect example थे. That is, he was the example of the rich cultural heritage of India. Okay, now this is clear. Now, if this is clear, तो अब हम finally today we'll start the text जो आपको यहाँ पे एकदम clearly visible है आपकी screens के ऊपर. तो एक बार अगर आप लोग सब रेडी हैं that we can start the text, then quickly एक बार आप लोग hand raise कर देंगे और you will simply thumbs up कर देंगे आप. Yes, very good. Okay. So now we are going to start with it. Okay. So see, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became a generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had excellence decided to improve the tonal quality of the pungi. Now, he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. Now see, औरंगजेब ने बैन कर दिया पुंगी का प्ले करना, दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस. क्यों? क्योंकि पुंगी जो है उसकी जो साउंड थी ना, इट वाज श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड. पुंगी जो थी इट बिकेम दी जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. ठीक है, पुंगी जो था एक जेनरिक नेम बन गया. वो जो भी रीडेड कहने का मतलब, एक रीड किसको बोलते हैं? एक वुडन स्टिक को रीड कहा जाता है. तो ये हॉलो स्टिक जो होती थी जिसमें से बेसिकली म्यूजिक प्ले किया जाता था, दीज इंस्ट्रूमेंट्स वर नेम एज द रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो रीडेड नॉइज मेकर्स. नाउ फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ ने सोचा दैट वन डे ये रिवाइव हो जाएगा. तो मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, इसे कुछ रिफॉर्म करेंगे हम लोग. तो एक बाबर थे of a family of professional musician, इनका एक्सेस था टू द रॉयल पैलेस. ये रॉयल पैलेस आते जाते थे. नाउ इन्होंने डिसाइड किया दैट ही हिमसेल्फ इज गोइंग टू डू समथिंग एंड ही हिमसेल्फ विल इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. दैट इज वाई उसके लिए उन्होंने क्या किया कि चूज अ पाइप. उन्होंने एक पाइप चूज किया विद अ नेचुरल होलो स्टेम. एक नेचुरल सा होलो सा स्टेम लिया. दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. जो पुंगी से लॉन्ग और पुंगी से ब्रॉड थी. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उस पाइप पे उन्होंने कितने होल्स कर दिए? 7. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उन्होंने उस पे प्ले किया ना, उन 7 होल्स. आपने बांसुरी देखी है ना, बांसुरी, वो शहनाई उसी का ही एक टाइप है वी कैन से. तो उसमें क्या होता है, जो ऊपर स्टिक पे जो होल्स होते हैं, आप उसको फिंगर से कभी किसी को ओपन करते हो, किसी को क्लोज करते हो. तो इसी तरह से उसके अंदर से जो म्यूजिक है वो प्रोड्यूस होता है. सो व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर produced. And he played the instrument before the royalty. उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया बिफोर द रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. और हर कोई बहुत इम्प्रेस हो गया. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. और वो इंस्ट्रूमेंट जो इतना डिफरेंट था फ्रॉम द पुंगी, उसे एक न्यू नेम देना ही था. ठीक है. Now he says कि first time I played it in front of the royalty and everyone was very much impressed because उसमें से जो म्यूजिक आ रहा था ना, that was beautiful. एंड इंस्ट्रूमेंट जो था वो पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट था एंड उसे एक न्यू नेम देना था. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स and was played by a nai, that is a barber, the instrument was named the shehnai. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था ना, ये इतना डिफरेंट था फ्रॉम द पुंगी, तो इसे न्यू नेम देना था. और जैसे जैसे ये स्टोरी हमें बताई जाती है, ट्रेडिशनल ये जो लेजेंड्स होते हैं जो इनके साथ जुड़े हुए, अकॉर्डिंग टू दैट इट वाज सेड दैट सिंस, क्योंकि इसे फर्स्ट टाइम किसने प्ले किया था? एक नाई ने, दैट इज एक बाबर ने किया था शाह चैम्बर्स के अंदर, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या दे दिया गया? शहनाई. So from this is the name came. So अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, from how does the name शहनाई originated, ठीक है,
So how does the Pungi converted to Shehnai? तो उसमें आपकी पूरी ये जो स्टोरी है ना छोटी सी, इसको लिखो. That it gave an unpleasant sound, and all the people decided that they are going to make some different in it or reform it. And once a Nai who had his access to the royal chambers, he decided that he is ultimately going to improve it. So for that he improved its tonal quality, और उन्होंने जो भी किया, and for the first time he played it in the Shah chambers. So because it was played by a Nai in the Shah chambers, that is why the instrument is named Shehnai. Okay. Now see, the sound of Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, Shehnai was part of Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. जो साउंड थी शहनाई की, उसे कंसिडर किया गया ऑस्पिशियस, एंड फॉर दिस रीजन इसे प्ले किया गया इन टेम्पल्स, एंड ये क्या था, एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट था ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. एंड इन द पास्ट, और पास्ट में शहनाई जो थी वॉज पार्ट ऑफ नौबत, वो नौबत का पार्ट थी. नौबत कहने का मतलब होता है ये एक 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो रॉयल कोर्ट में प्ले होते हैं ना, उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में 1 इंस्ट्रूमेंट ये होता है. नाउ रिसेंटली शहनाई जो है उसे यूज किया जाता है इन टेम्पल्स एंड इन वेडिंग्स, एंड क्रेडिट for bringing this instrument on to the classical stage, ये किसको जाता है? हाँ साहब, इसे प्ले करने का काम, इसे इतना हम बोलेंगे एक हेरिटेज का पार्ट बनाना, एक कल्चर का हिस्सा बनाना. At this level, who bought this instrument at this level? That is उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब. So ये जो एक क्रेडिट जाता है ना कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाने का, this credit goes to who? It goes to Ustad Bismillah Khan. Now, as a 5-year-old, Bismillah Khan played Gulli Danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. तो ठीक है, तो अब जब वो 5 years old थे, तो एज अ 5-year-old boy, ये जो बिस्मिल्लाह खान थे ना हमारे, इन्होंने क्या किया था, he used to play गिल्ली डंडा नियर द पॉन्ड. गिल्ली डंडा एक ओल्ड काइंड ऑफ अ गेम है, तो उसको ये पॉन्ड के आसपास खेलते थे इन द एंशिएंट स्टेट्स ऑफ दुमराव इन बिहार. दुमराव बिहार में एक प्लेस जहां वो रहते थे. जनरली आपने वो वर्ड सुने थे बिहार एंड ये दुमराव, उनको बहुत याद आता था दुमराव एंड बनारस. तो दुमराव के साथ बेसिकली यहाँ से कनेक्टिविटी है कि वो दुमराव को क्यों मिस करते थे. ओके, तो उनका बचपन जो था वो यही दुमराव में ही गुजरा था. He would regularly go to nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaitra. वो रेगुलरली बिहारी जी टेम्पल जाते थे और वहां पे वो भोजपुरी चैता प्ले करते थे, गाते थे. At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian awards in India, the Bharat Ratna. Now, see, अब finally क्या हुआ? Now, because वो वहां प्ले करने जाते थे, and as a reward he should get something. तो as a reward उन्हें हमेशा एक big लड्डू मिलता था, whose weight was what? 1.25 kg. और ये उन्हें as a prize मिलता था, that was given by the local Maharaja of that place. ये लोकल महाराजा उनको देते थे ये, ठीक है. एंड दिस हैपेंड, ये कब की बात है? 80 years ago की. एंड ये जो लिटिल बॉय था, he has traveled far to earn the highest civilian award. उन्होंने बहुत फार ट्रेवल किया था जस्ट टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया, द भारत रत्न. और यही बॉय ने इतना ट्रेवल किया, इतना, वी कैन से ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, कहने का मतलब इतना लॉन्ग, इतना बिग सक्सेस अचीव किया. इट टुक सो मच टाइम, एनर्जी, सब कुछ लिए, उनका एफर्ट्स लिए बहुत सारे, that finally he was awarded the highest civilian award of India, that is of our nation, the Bharat Ratna. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather,
Rasul Bux Khan was the Shehnai Nawaz of Bhojpur King's Court. His father, Pegambar Bux, and other paternal ancestors were also great Shehnai players. Now, as he was born on 21st March 1916, Bismillah belonged karte. Now, these are the basic, we can say, life details of Bismillah Khan. That when he was born, 21st March 1916, and he belongs to a well-known family of musicians from Bihar. उनके ग्रैंडफादर कौन थे? रसूल बख्श खान. He was the Shehnai Nawaz of भोजपुर किंग्स कोर्ट. और उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, वो एंड उनके जो अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो सारे के सारे ग्रेट शहनाई प्लेयर थे. along with that हम देखते हैं कि हमारे जो बिस्मिल्लाह खान साहब है वो भी अपनी फैमिली ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए वो भी ऐसे ही एक ग्रेट शहनाई प्लेयर बने. ओके, now see the next page. I hope it's visible to you all. Yes, the young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to maternal uncle's house in Banaras, now that is known as Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the Shehnai. Now the young boy ये जो था इसने म्यूजिक को बहुत ही अर्ली लाइफ में टेकअप कर लिया था. दैट इज एट द एज ऑफ 3 years old, जब वो अपनी मदर के साथ में अपने मेटर्नल अंकल के घर गई. दैट इज मेटर्नल अंकल इज हु? मामा जी, मदर्स ब्रदर. So when he went to his maternal uncle's house in Banaras, that is particularly अभी बनारस को हम वाराणसी के नाम से जानते हैं. So बिस्मिल्लाह जो थे was fascinated, बहुत fascinate हो गए. That is, he was very much attractive and he was, we can say कि वो बहुत ज्यादा excited हो गए थे seeing his uncle, watching his uncle practice the Shehnai. And उन्हें exiled them. That is, he also wants कि अब वो भी इस इंस्ट्रूमेंट को सीख ले. Okay, so for that what he did, उन्होंने स्टार्ट किया. soon, very soon, बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle. क्या नाम था उनके अंकल का? अली बख्श. To the Vishnu temple of Banaras, जहाँ पे अली बख्श was employed to play Shehnai. As we all know that Shehnai दो जगह पे प्ले की जाती थी, in the temple and in weddings, right? So वो उन्होंने अपने अंकल, वो कौन से टेम्पल जाते थे म्यूजिक प्ले करने के लिए? खुद हमारे जो बिस्मिल्लाह खान साहब है वो बिहारी जी टेम्पल जाते थे और वहां पे क्या गाते थे? भोजपुरी चैता गाते थे. ठीक है. एंड इन रिवॉर्ड व्हाट ही रिसीव्स 1.25 kg का बिग लड्डू एज अ रिवॉर्ड. नाउ सेकेंडली, जो हमारे अब अली बख्श जी के बारे में बताया गया है, दैट अली बख्श जो थे ही ऑलवेज यूज्ड टू गो टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, जहां पे उन्हें एम्प्लॉय किया गया था टू प्ले द शहनाई. एंड जो हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब थे, जब वो अपने मेटर्नल अंकल के पास थे तो ही वाज, एज वी नो दैट ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट. सो उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू किया और वो उनको अकम्पनी करते थे, उनके साथ रोज जाते थे वहां पे. Ali Bux, who play the Shehnai and Bismillah, would sit captivated for hours on end. Ali Bux Shehnai बजाते रहते and Bismillah जो थे वो बैठे रहते. Captivated means he was all around captivated in this beautiful instruments, music, or we can say everything. तो वो वहां पे बैठे रहते for hours on end, कई घंटों घंटों तक. Slowly उन्होंने start किया getting lessons in playing the instrument. Slowly उन्होंने अपने lessons लेने शुरू किए, that how to play this instrument, and would sit practicing throughout the day. And he would sit practicing throughout the day, और पूरे दिन वो practice करते रहे. For years to come, the temple of Balaji and Mangal Maiya and the bank of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Now for years तो वो टेम्पल जाते रहे, ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया के टेम्पल जाते थे ऑन द एंड रिवर गंगा के बैंक्स पे जाते थे. एंड वहीं पे ये उनके फेवरेट हॉन्ट्स हो गए थे. मतलब उन्हें रिवर गंगा के पास जाके शहनाई को प्रैक्टिस करना वाज सच अ ग्रेट थिंग फॉर हिम कि उन्हें ऐसा लगता था हियर ही हैज द सॉलिट्यूड. अकेलापन होता था, देयर वाज कंप्लीट पीस, नोबडी वाज देयर टू गोइंग टू डिस्टर्ब हिम. एंड वहां पे वो बहुत अच्छे से इस म्यूजिक को वो समझते थे, सुनते थे, बहुत एंजॉय करते थे.
And along with this, ये जो flowing water था ना, the flowing water of Ganga, it inspired him to improvise invent the rags that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. And यही जो flowing water था गंगा का, it inspired him, उसने इन्हें inspire किया to improvise and invent the rags, और improvise करना, rags invent करना, that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai, जिन्हें earlier consider किया जाता था कि ये शहनाई की range के क्या थी, beyond. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad music conference, and at the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." Now, at the age of 14 years, Bismillah ने अपने अंकल को accompany किया to the Allahabad music conference. And जब उन्होंने अपना recital खत्म किया, तो उस्ताद फयाज खान जो थे वहां पे, वो भी एक बहुत ग्रेट म्यूजिशियन थे, पहुंचे हुए खिलाड़ी सब इस फील्ड के. ही केम, और उन्होंने बिस्मिल्लाह खान साहब की बैक को पैट किया, कहने का मतलब उनकी पीठ को थपथपाया, शाबाश दी, और उन्हें कहा खूब मेहनत करो, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और देखो तुम कहीं ना कहीं एक मार्क क्रिएट करोगे. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ in 1938 came Bismillah's big break. Now with the opening of All India Radio, इस All India Radio की opening के साथ में in लखनऊ in 1938 बिस्मिल्लाह का big break आया. उनके तो first big break उन्हें कहाँ पे मिला था? This is also question. ये question है जो पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह का first big break कौन सा था? तो वो क्या था? All India Radio लखनऊ में in 1938 he got his big break. बहुत soon, very जल्द, मतलब हम बोलेंगे very soon, he became an often heard Shehnai player on radio. तो क्या हो गए? Often heard Shehnai player on radio means number of, जैसे हम अभी YouTube पे कुछ डालते हैं, कोई रील्स बनाते हैं, तो भी चेक ना कि हमें कितने लाइक्स मिले, कितने व्यूज मिले. तो उसी तरीके से ये जो थे, जब इन्होंने लखनऊ उस पे रेडियो स्टेशन पे when he started playing the Shehnai, he gained, we can say, a large number of audience. That is, he soon became an often heard Shehnai player on radio. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. Now see, ये कितना big achievement है. जिसके पास में इतना बड़ा achievement हो, obvious सी चीज है कि उन्हें तो भारत रत्न मिलना ही है. Now see, जब इंडिया ने गेन किया इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान कौन बन गए? ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रीट किया इंडिपेंडेंट नेशन को विद हिज शहनाई. ही poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to the audience, which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. अब देखो, यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान साहब को जब फर्स्ट एक अपॉर्चुनिटी मिली टू प्ले दिस ग्रेट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो क्या हुआ? ही जस्ट पोर्ड हिज हार्ट आउट. उन्होंने अपने ना दिल के जो वीकेंड से जो इमोशंस थे ना, वो निकाल दिए सबके सामने टू द नेशन. जब वो अपने नेशन को ग्रीट कर रहे थे, अपने नेशन को भी से वो वेलकम कर रहे थे. सो विद हिज शहनाई, विद व्हाट? with his Shehnai, and he poured his heart out in Rag Kafi. उन्होंने राग कफी को प्ले किया था, और ये उनको जो ग्रेट, वी कैन से, ये जो एक ग्रेट मोमेंट था, वो उन्होंने किस प्लेस पे किया था? रेड फोर्ट पे. और उन्होंने ही poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort. रेड फोर्ट से उन्होंने ये अपनी प्रेजेंटेशन दी थी टू एन ऑडियंस. ये परफॉर्मेंस कहाँ थी? उनको पूरे ऑडियंस के लिए, वो ऑडियंस जिसके अंदर बहुत ग्रेट पीपल भी थे. एंड वन ग्रेट पीपल इन द ऑडियंस वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लेटर उसी ओकेजन पे, उसी परफॉर्मेंस, उसी वी कैन से, उसी एक ओकेजन, उसी एक इवेंट पे एक स्पीच भी दी थी, विच इज फेमस स्पीच, जिसको जाना जाता है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. Now, Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान साहब ने बहुत से मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिए, दोनों इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी.
फर्स्ट ट्रिप जो अब्रॉड की थी वॉज टू अफगानिस्तान। वो कहाँ की थी? अफगानिस्तान की। वेयर किंग जहीर शाह, जहाँ पे किंग जहीर शाह जो थे was so taken in by the Mestrio that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Now, Bismillah Khan जो थे उन्होंने बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। वो उनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी अब्रॉड की वो क्या थी? वॉज टू अफगानिस्तान, जहां पे किंग जहीर शाह जो थे वॉज सो टेकन, इतने वो टेकन अवे हो गए थे बाय दिस मैस्ट्रियो, ये जो ग्रेट एक पर्सन थे, ग्रेट म्यूजिशियन जो थे, बाय दिस ग्रेट मैस्ट्रियो, कि उन्होंने उनको बहुत प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट किए एंड अदर सोविनियर्स। सोविनियर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो हम देते हैं किसी को, थिंग्स जो हम मेमोरी में देते हैं ऑफ अ प्लेस, ठीक है, पर्सन और इवेंट। आप जैसे किसी प्लेस से आते हो, सपोज आप अपने किसी रिलेटिव को या किसी फैमिली फ्रेंड को आप कश्मीर विजिट करने गए, वो वहां की जो फेमस चीज आपको देंगे ना, जिससे आपको हमेशा कश्मीर याद आएगा, दैट इज बेसिकली अ सोवेनियर। तो जब वो जगह जगह पे जाते थे अपनी ये म्यूजिक परफॉर्मेंसेस देने के लिए, तो वहां पे उनको प्राइसलेस चीजें मिलती थी जिनको कि वो याद रखेंगे। तो हिज फर्स्ट ट्रिप कहाँ थी? अफगानिस्तान, जहां पे किंग थे जहीर शाह। वो उन्होंने उनको क्या गिफ्ट किया? एक प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड मेनी अदर सोवेनियर्स। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. अब बिस्मिल्लाह ने तो अब्रॉड बहुत से नेशंस में अपने म्यूजिक परफॉर्मेंसेस दिए, सो वी कैन से कि सिर्फ ये जो अफगानिस्तान के किंग थे, he was not the only one who was fascinated with his music, but there were many other also. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument गूंज उठी शहनाई. Now, एक फिल्म जो थे, फिल्म डायरेक्टर जो थे विजय भट्ट, he was so much impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named, कि वो इतने ज्यादा, वो एक फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने कहीं प्ले किया होगा या किसी भी एक फेस्टिवल में उन्होंने प्ले किया इस म्यूजिक को, इंस्ट्रूमेंट को, एंड विजय भट्ट वाज सो मच इन्फ्लुएंस, सो मच इम्प्रेस्ड कि उन्होंने डिसाइड किया, एंड व्हाट ही डिसाइडेड, ही नेम्ड अ फिल्म ऑफ हिज आफ्टर दिस इंस्ट्रूमेंट, दैट इज गूंज उठी शहनाई। नाउ यू कैन से कितने ग्रेट अचीवमेंट्स हो जाते हैं कभी कभी, राइट? नाउ फर्दर मोर इज कमिंग एंड दिस फिल्म वाज अ हिट, और ये एक हिट फिल्म हो गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान क्या थे? म्यूजिक कंपोज, म्यूजिक देते थे, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, उसके अलावा वो कंपोजिंग भी का काम भी करते थे। एंड वन ऑफ हिज ग्रेट म्यूजिक कॉम्पोजिशन वाज दिल का खिलौना हाय टूट गया, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। दैट डे आई टोल्ड यू कि इस सॉन्ग को जरूर सुनना। हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू दिस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन? सुना था किसी ने? ओके, दिव्यांशु ने सुना, प्रखर ने सुना, वासुकी ने सुना। डिड यू रियली फाइंड इट एन इंटरेस्टिंग थिंग? ऐसा सच में लगा दैट अ पर्सन जिसने भारत रत्न अचीव किया है, सच में ये कोई ऐसे ग्रेट पर्सन की कॉम्पोजिशन, ऐसी फीलिंग आई? यस, नाउ योर थम्स अप शोज मी कि यस यू फेल्ट इट लाइक दिस वाज रियली अ ग्रेट कॉम्पोजिशन, कि वो सी ही वाज रियली एलिजिबल, और वो ही वाज रियली द राइट पर्सन जिन्हें भारत रत्न दिया गया। वेरी राइट। होता क्या है ना, पर्सन जो हमारे नेशन के लिए इतना बड़ा काम कर देते हैं, वी शुड ऑलवेज रिकग्नाइज हिज एफर्ट्स। हमें हमेशा ना उनके एफर्ट्स को रिकग्निशन देना चाहिए, ठीक है? बिकॉज वो इतना कुछ कर देते हैं, वी प्राउडली एवरीवेयर वी कीप ऑन सेइंग हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान। तो जो इस हमारे इंडिया को वर्ल्ड वाइड लेके जाते हैं ना, इट इज आवर ड्यूटी, हमारा फर्ज होता है, हमारा कर्तव्य होता है, दैट वी शुड ऑलवेज। हम एक ही तो चीज कर सकते हैं, हम उनको प्रेज कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, दैट वी शुड ऑलवेज डू। So it turned out to be a nationwide chartbuster. Now, despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivasa's Kannad venture Sanadhi Apana. Now वो कह रहे थे कि डिस्पाइट दिस इस ह्यूज सक्सेस, ये जो इस सेल्यूलॉइड वर्ल्ड के अंदर उनका इतना ग्रेट सक्सेस था, उसके अलावा क्या हुआ? बिस्मिल्लाह खान के जो वेंचर थे इन म्यूजिक फिल्म्स वो लिमिटेड थे सिर्फ दो तक।
पहला था विजय भट्ट का गूंजूटी शहनाई एंड सेकंड जो था एक श्रीनिवास थे कन्नड़ वेंचर था, दैट वाज अ कन्नड़ फिल्म whose name was Sanadi Appana. I just can't come to the terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. और उन्होंने बहुत एम्फोसिस डालते हुए, बहुत प्रेशराइज करते हुए इस चीज को उन्होंने क्या बोला कि मैं ना, अब मेरे पास कोई टर्म्स नहीं है कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूं कि ये जो ग्लैमर है फिल्म वर्ल्ड का, इट्स कम्प्लीटली आर्टिफिशियल। ये जो ग्लैमर है ये क्या है, इट्स कम्प्लीटली एन आर्टिफिशियल ग्लैमर, इसके अंदर ट्रूथ जैसा कुछ भी नहीं है। He says this with emphasis. And further he says award and recognition. Awards, recognition, they just came thick and fast. मतलब thick मतलब खूब awards मिले. Fast means बहुत जल्दी जल्दी मिले. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. Now he was the first person जिन्हें invite किया गया that he should come and perform in the Lincoln Center Hall in United States of America, and this hall is particularly it's called the prestigious Lincoln Center Hall. He also took part in the World Exposition in the Montreal, in the Cannes Art Festival and the Osaka Trade Fair. And he also took part, उन्होंने part लिया कहाँ पे, in the World's Exposition in the Montreal, in Cannes, that is जो Cannes Film Festivals, ये सारे वो basically वो festivals हैं या ये वो places हैं या वो events हैं जहाँ जहाँ पे उन्होंने part लिया. Nothing to understand in this, this all should be in your mind as it is. And he also went to the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally, वो इतने well known हो गए internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कि एक ऑडिटोरियम था वो इंटरनेशनली इतने ज्यादा नोन हो गए कि एक फेमस हो गए इंटरनेशनली कि एक ऑडिटोरियम था तेहरान नाम के एक प्लेस पे, उन्हें उनके नाम के पीछे नेम किया गया, दैट इज ताहर मॉस्क. तेहरान में था ना तो ताहिर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. Now, national awards like Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred on him. अब कुछ national awards थे जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब क्या थे, ये सब उनको confer किए गए. Confer on him means given usually as an award or a degree. ये उन्हें award किए गए, ये उन्हें दिए गए. Now, in 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn out music. नाउ इन अर्लियर ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में क्या होता था ना, वहां पे इसको म्यूजिक को एक अच्छी चीज नहीं मानते थे. इट वॉज टेकन एज अ ल्यूड प्रोफेशन एज आई टोल्ड यू. ठीक है, इन्हें बेगर्स और हेरल्ड्स का प्रोफेशन समझा जाता था. एंड इट वॉज टेकन दैट सिविलाइज्ड पर्सन जो होते हैं ना, वो कभी भी म्यूजिक को अपना करियर नहीं बनाते या वो कभी भी नहीं गाते बजाते, क्योंकि ये तो गाने बजाने वालों का काम है. दिस वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी जो सच में उस समय की सोसाइटीज में प्रिवेल करती थी. बट in 2001, when Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, that is the Bharat Ratna, with the coveted award, ये coveted award जो था, coveted award कहने का क्या मतलब है, that much desired award था. ये सबकी बहुत desire रहता है, इच्छा होती है. एंड स्पेशली अब हम लोग तो है, हम लोग तो कभी उस लेवल के अचीवमेंट्स की लाइन में ही नहीं गए कि हम कभी भारत रत्न तक पहुंचेंगे. बट देर आर सम पीपल हु हैव टेकन देयर करियर इन दैट पर्सपेक्टिव, वो उस करियर को वहां तक ले गए हैं वेयर दे रियली विश कि हम लोग उस पॉइंट तक पहुंचे इस करियर को लेके, दैट वी शुड रिसीव व्हाट, वी शुड रिसीव द भारत रत्न. सो ये एक बहुत ही डिजायर्ड बोलते हैं अवार्ड था, विच वॉज रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, एंड उनकी आईज जो थी इट वॉज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस. ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी पर्सन को भारत रत्न लगा दिया जाता है, ठीक है, ऑन हिज चेस्ट, तो वो पर्सन की आईज में जो हैप्पीनेस होती है ना, इज बियॉन्ड द लिमिटेशन, इज आउट ऑफ द वर्ल्ड वी कैन से. एंड ऑल आई वुड लाइक टू से इज, और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ऑब्वियस सी बात है, दो शब्द कहने के लिए तो हर किसी को बुलाया जाता है आफ्टर द अवार्ड इज टेकन.
तो उनको बिस्मिल्लाह खान साहब भी आए अपनी पोजीशन पे टू गिव हिज वी कैन से अपनी तरफ से कुछ बोलने के लिए, थैंक्स पे करने के लिए वी कैन से, और अपनी तरफ से कुछ बोलने के लिए। सो व्हाट ही सेड, उन्होंने एक बहुत ही वी कैन से बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही सेंसिबल बात कही। ही सेज ऑल आई वुड लाइक टू से इज, जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, इवन जो वेस्ट है इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, इवन जो वेस्ट है ना वो भी अब म्यूजिक के लिए आगे आ रहा है। सो वी कैन से कि ये हमारे हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है। डू नॉट टेक इट इन अदर वे, जस्ट लेट योर चिल्ड्रन लर्न म्यूजिक, teach your children music, because this is going to bring many more Bharat Ratnas to our India. This is to take going to take our cultural heritage at the peak of this universe. So let your children learn music, teach your children music, and this is the